नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। एलपीए को समझ रहे हैं। अभी तक हम 3 वीडियो में एलपीए को समझ चुके हैं। तीनों वीडियो में सरकार की दो बड़ी खामियां निकल के आई हैं। हाई कोर्ट ने आपका फेवरेटिज्म माना है, भ्रष्टाचार माना है, करप्शन हुआ है। जो एफिडेविट आपका दिया था सरकार ने, उसको निल एंड वॉइड माना है। नल एंड वॉइड माना है भाई। आपका जो एफिडेविट दिया, कहा है कि गुमराह, सरकार के एफिडेविट ने गुमराह किया है। अब हम पॉइंट 70 से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 70 पे पहुंचे हुए We find it surprising that the commission should give opportunity to such unscrupulous candidate to withdraw for their claim of social democrat which they have already held and which was made a basis for their being allowed to participate and apply for the selection conducted by a commission based on the result published 10 जनवरी 2023 which has subsequently revised drastically on 25 July 2007. The result declared on 25 has also been admitted not to be final as again candidate were allowed to further their column relating to seat score up to 29 as per affidavit 6223 were further allowed up to 29/7/2023 to get their seat score revised. Instead of taking action against such candidate, इनके खिलाफ एक्शन लेने की बजाय such candidate who had claimed wrongfully benefit of socio-economic criteria, the commission has allowed this person to participate in the examination and also selected them. इनको पार्टिसिपेट, जज साहब ने ये कहा है कि भाई आपने इनको पार्टिसिपेट क्यों करवाया, जिसने 5 नंबर लिए हुए थे, इन पे आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। जज साहब ने कहा जिन्होंने 5 नंबर गलत लिए, आपने उनको पार्टिसिपेट क्यों करवाया, आपने उनको सजा क्यों नहीं दी। द एंटायर एग्जामिनेशन स्मैक ऑफ बंगलिंग एंड फेवरेटिज्म, भ्रष्टाचार करप्शन की बू आती है पूरी भर्ती में। The commission, which formed under Article 320 of the Constitution of India, is a statutory body which is required to conduct fairly and impartially. Although the Advocate General of Haryana has considered before the single judge about the irregularities which have been noted by him, a different picture was presented before the division bench. एक अलग तरह की पिक्चर को आपका डिवीजन बेंच के सामने रखा गया, ठीक है। डिवीजन बेंच एंड एंट्री वोट वाज पास्ड रिजल्टिंग इन फर्दर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्रोसेस। जानबूझ के आपकी प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट किया गया। इन द ओपिनियन ऑफ दिस कोर्ट, वंस concession is made before the single judge, no appeal would be lie before the divisional bench. बड़ा जजमेंट दिया है, कहा कि फद्दू बनाने का काम किया गया है। डबल बेंच में जाके फद्दू बनाने का काम किया गया, डिविजनल बेंच को धोखा दिया गया है, ये तक कहा गया है आपका माननीय जज संजीव प्रकाश शर्मा जी के द्वारा। उसके बाद है वी आर सेटिस्फाइड द रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड बाय द रिस्पोंडेंट ऑन वाज further revised are not in accordance with the law and same deserve to be scrapped. हम पूरे के पूरे रिजल्ट को स्क्रैप करते हैं विभिन्न जो तथ्य है उनको देखने के बाद। फर्दर वी ऑल्सो इन द एग्रीमेंट विद द फाइंडिंग ऑफ द लर्न सिंगल जज दैट द ineligible candidate have been given marks under certain criteria which resulted in the participant in the second stage examination. The result therefore on the second stage also been, हम रद्द करते हैं उस रिजल्ट को भी जो आपके गलत कैंडिडेट है। बात जज ने ये नहीं कहा कि उनके 5 नंबर हटा लो, जज ने यह कहा कि उनको सजा दो, ठीक है ना। सजा देने का प्रावधान तक कह दिया है जज साहब ने। लन सिंगल जज का जो थी ये पूरी की पूरी उनकी आपका जो ऑर्डर था ये उन्होंने सिंगल जज का पढ़ा। द सेड फाइंडिंग ऑफ द सिंगल जज वाज परफेक्टली, जो सिंगल बेंच की जो आपकी जजमेंट है उसको अकॉर्डिंग टू लॉ एंड रिफ्लेक्ट द रॉन्गफुल मैनर इन द inventory process selection has been conducted. We cannot therefore upload the selection made on the basis of advertisement 733 and the advertisement if any made cannot be sustained in law. पूरी की पूरी एडवर्टाइजमेंट को रद्द कर दिया है, ठीक है। Since several persons have been implicated as parties to these petition LP in view of the judgment passed by Supreme Court in the case of Arun Tiwari versus Jilla Mansuri Sisank Singh 1998. All the original applicant before the tribunal have challenged the provision, ये आपका पूरा आपका बताया गया है। जजमेंट आपकी फिर से कोर्ट की गई है। इन द व्यू ऑफ द सुप्रीम रिप्रेजेंटेटिव वी नीड नॉट इम्प्लीड ईच एंड एवरीवन एज पार्टी टू दिस केस। हमें हर एक पार्टी को इम्प्लीड करने की जरूरत नहीं है। इट इज अपेरेंट दैट सिंस द सिलेक्शन एंड पॉइंट हैव बीन मेड बाय द रिस्पोंडेंट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस केसेस इट इज फॉर द स्टेट कमीशन टू हैव बीन डिसीजन एट देयर ओन रिस्क एंड कॉस्ट। सरकार ने कहा है, मतलब जज ने कहा है कि ये जो रिस्क लिया गया है आगे प्रोसेस को बढ़ा के, ये सरकार ने अपने रिस्क पे लिया था और अपनी कॉस्ट पे लिया था। एनी अपॉइंटमेंट मेड बाय देम इन टर्म ऑफ थ्योरी ऑफ लीस्ट प्रेसिडेंस विल देयरफॉर हैव टू गो। यानी आपकी जो 20 ग्रुप की ज्वाइनिंग है उनको नल एंड वॉइड आपका घोषित कर दिया है। कीपिंग इन अवर अफॉर्मेसेड फाइंडिंग इंक्लूड एज अंडर द सेक्शन में इकोनॉमिक एरिया। अब पूरी की पूरी जो फाइंडिंग है, जो समरी है, उसको
इन्होंने कीपिंग इन व्यू रखा है। द सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस वाइड अमेंडमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 5/5/2022 इस क्वेस्ट खत्म करते हैं हम सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को एंड सेट असाइड साइड में रखते हैं। साइड असाइड मीन क्वेश्चन भी किया है। द बोनस मार्क ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया हैव टू वॉलेट आर्टिकल 14, 15, 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक उसके बाद सीटी रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 10/1/2023 एज वेल एज सब्सिक्वेंट रिजल्ट डेटेड 25/2023 क्वेश्चन। जो आपका रिजल्ट 10/1/2023 को 25 जुलाई 2023 को आया था उसको हम क्वेश्चन करते हैं। इट इज डायरेक्टेड दैट द ये आदेश दिया जाता है, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सीटी मार्क्स ऑफ कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द सेम making it as basis the state commission shall now issue a fresh advertisement। fresh advertisement आपकी निकालनी पड़ेगी for filling up various post and each candidate shall be allowed to apply strictly in accordance with the rules for the post। if more than 4 time applicant available to the post, the respondent may lay down a cutoff of the CET for the purpose of participation। the rules for exam shall accordingly follow, the result shall be declared accordingly। उसके accordingly आपका declare होगा। those candidate who have been appointed on various post on the आपका on the basis of earlier result shall be allowed to participate in the fresh selection process if they fall in the new merit list of the CET। ठीक है, ये पॉइंट बड़ा समझने वाला है। those candidate who have been appointed on various post on the basis of the earlier result shall be allowed to participate in the fresh selection process if they fall in the new merit list of the CET। इसको फिर से समझ लेते हैं। those candidate who have been appointed on various post, जिनको नौकरियां दी गई है ऑन द बेसिस ऑफ अगले रिजल्ट, पिछले रिजल्ट के आधार पे, शैल बी अलाउड टू, उनको अलाउ किया जाता है कि वो पार्टिसिपेट करें फ्रेश सिलेक्शन प्रोसेस में इफ दे फॉल इन द न्यू मेरिट लिस्ट, अगर वो न्यू मेरिट लिस्ट जो आएगी सीटी में उसमें आते हैं तो। टिल फ्रेश सिलेक्शन इज प्रिपेयर्ड दे शैल बी अलाउड टू कंटिन्यू टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज ऑन द पोस्ट टू व्हिच दे हैव अपॉइंट, जब तक वो ड्यूटी करें। हाउएवर इफ दे आर नॉट सिलेक्टेड अल्टीमेटली इन द फ्रेश प्रोसेस दे shall have to leave the post and the appointment shall stand terminated। no right shall be created in their favor on account of continuing on the post, nor will they be entitled to claim any benefit on the account of the same except the salary of the period keeping which they perform their duties। ठीक है, keeping in our finding relating to collective examination without declaring the result certified by the commission will direct the chief secretary Haryana to take step to appoint a stable candidate having experience of conducting examination as। साथ में ये भी कहा है कि आप चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को कि भाई आप ऐसे लोग को एक्सपीरियंस है जिसको भर्ती पूरी करने का एज सेक्रेटरी ऑफ द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन लाइक द कंट्रोल ऑफ स्टेट और यूनिवर्सिटी की दीजिए। यानी विनय कुमार को हटाने की सिफारिश की है आपकी जज साहब के द्वारा। विनय कुमार को हटाने के लिए बोला गया है। In order to maintain transparency and consistency, the commission is therefore directed to frame rules of the commission for conducting examination without leaving any discretion of its official or member to take decision on the whims and fancies which has resulted in the present litigation। साथ में ये बोला गया है ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी कमीशन को अपने डायरेक्टेड टू फ्रेम रूल्स ऑफ द कमीशन, आपके रूल बनाने पड़ेंगे अच्छे से तरीके से। और उसमें ये नहीं है कि किसी ऑफिशियल को या मेंबर को आप अपनी मतलब जो उनके सपने में आया वो आप उनको परमिशन दे दो। एक कंप्लीट एक बॉडी बनानी पड़ेगी, कमेटी बनानी पड़ेगी जो कि आपके रूल बनाएगी। द एक्सरसाइज विल बी कंप्लीटेड पॉजिटिवली इन 6 मंथ। ठीक है, सारी की सारी प्रोसेस को 6 महीने में पूरा करवा देना चाहिए। ऑल द रिट पिटीशन अकॉर्डिंग अलाउड, ऑल द एलपीए डिसमिस, सारी रिट पिटीशन को अलाउ कर दिया है। एलपीए डिसमिस हो गई है। पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी शैल डिस्पोज अकॉर्डिंगली। ये आपका सुरेंद्र प्रकाश शर्मा, सुदीप्ति शर्मा जी का फैसला है एलपीए में, जिसको ये फ्लावर समझे थे शर्मा जी तो फायर निकले। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।